آج آپ دیکھیں گے جب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے تو یہ ایک اصول ہے جو میں نے بھی تیاری کے دوران سیکھا۔ آج صبح کلام کے جس حصے پر ہم غور کریں گے وہ خروج کی کتاب اس کا 17واں باب، ایکسڈس چیپٹر 17، اس کی 8ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں بالخصوص پرانے عہد نامے میں بہت سی جگہوں پر خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ بنی اسرائیل کو بخشا۔ خدا نے اپنے نام کو بنی اسرائیل پر ظاہر کیا، اور بہت دفعہ جو تجربہ پانے والے تھے، جس طور کا تجربہ انہیں خدا کی ذات کا ہوتا تھا، اسی مکاشفے کے تحت وہ خدا کو اس نام سے پکارا کرتے تھے۔ اگر ہم ہاجرہ کی مثال دیکھیں تو اس نے اس جگہ کا نام عطائل روئی رکھا اور کہا کیونکہ اس نے مجھے دیکھا یا مجھ پر نگاہ کی۔ ہم خدا کے نام یہوہ یری سے واقف ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ یہوہ رافع یعنی خدا شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کے حوالے میں اس تجربے میں جو بنی اسرائیل کو ہوا، خدا نے ایک اور نام اس تجربے سے موسیٰ پر ظاہر کیا، اور موسیٰ نے اسے یہوہ نسی کہہ کر پکارا، جس پر آج صبح ہم غور کرنے کو ہیں۔ آئیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے جس میں یہ تجربہ موسیٰ کو ملا۔ تب عمالیکی آ کر رفدیم میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے۔ اگر 17ویں باب کا آغاز آپ دیکھیں تو یہ بیابان کے سفر میں ہیں، پیاسے تھے، پانی نہیں تھا، اور ان کو خدا نے پانی مہیا کیا۔ انہوں نے اس جگہ کا نام مریبہ رکھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سفر شروع کیا، یہ پیاس کی مشکل سے نکلے، تو کلام بتا رہا ہے کہ تب عمالیکی آ کر اسرائیلیوں سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند عمالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ ایک اور حوالہ استثنا کی کتاب، اس کا 25واں باب نکالیے تاکہ آپ کانٹیکسٹ کو دیکھ سکیں۔ وہاں پر کلام بتاتا ہے کہ کس صورتحال میں عمالیکیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ استثنا 25واں باب اور 17ویں آیت سے یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو رستے میں عمالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ رستے میں تیرے مقابل آئے
और गो तू थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमज़ोर और सबसे पीछे थे मारा, और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्ज़ा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास हैं तुझको राहत बख्शे, तो तू अमालिकियों के नामो निशान को सफ़ाए रोज़गार से मिटा देना। तू इस बात को ना भूलना। कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि जब ये लोग बियाबान में सफ़र कर रहे थे और कमज़ोर हालत में थे, यानी कि जंग नहीं कर सकते थे, भूख और प्यास से निढाल थे, मुसाफत के दौरान थे, तो अमालिकियों ने इन पर हमला कर दिया। इनको कमज़ोर जानते हुए उन्होंने सोचा कि हम इनको फतह कर लेंगे। ऐसे में खुदावंद ने मूसा को विज़डम बख्शा और उसने कहा कि हम इनका मुकाबला करेंगे। ये पूरा पैसेज जो है ये जंग की ज़ुबान है। यहोवा निसी का मतलब है खुदावंद मेरा झंडा है। इसका एक और मतलब ये है कि खुदा हमारा स्टैंडर्ड है। इसका एक और मतलब ये है, ये वो निशान है जिसके नीचे हम सब मुत्तहिद हैं। और ये तीनों बातें इस हवाले में हमें मिलती हैं। मूसा ने यशवा से कहा कि अपने साथ लोगों को ले ले और डट जा, तू जाकर अमालिकियों का मुकाबला करेगा। सो आज सुबह पहली बात जो हमारे सीखने के लिए है, अगर हमारे पास यहोवा निसी का मुकाशफा है तो हम जिंदगी की जंगों में डटे रहते हैं। एक मसीही जिंदगी की जंग में पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसका झंडा यहोवा निसी है। खुदा ने ये मुकाशफा मूसा के अंदर रख छोड़ा और उसने यशवा से कहा, जा और तू अमालिकियों के साथ जंग करेगा। लेकिन जब तू जंग कर रहा होगा, फिजिकली उनसे लड़ रहा होगा, तो मैं भी एक काम करूंगा। मैं खुदा की लाठी यानी द स्टैफ ऑफ गॉड उसको लेकर पहाड़ के ऊपर खड़ा रहूंगा। मेरे अजीजों, जंग सिर्फ वो नहीं जो फिजिकली जो है यशवा लड़ रहा था, बल्कि ईमानदारों की जंग ना सिर्फ जिस्मानी है बल्कि रूहानी आलम में भी एक जंग दरपेश रहती है। और इस वक्त बनी इसराइल दो महाजों पर लड़ने लगे। एक महाज जिस पर यशवा फिजिकली लड़ रहा था, दूसरा महाज जिस पर पहाड़ के ऊपर मूसा खुदा की लाठी को लिए हुए था और शिफात कर रहा था। कई दफा हम अपनी जिंदगी में दरपेश मसाइल के अंदर सोचते हैं, ये फलां शख्स मेरे खिलाफ है, ये फलां शख्स मुझसे लड़ना चाहता है, लेकिन इसकी हकीकत वो फलां शख्स नहीं होता, बल्कि तारीकी के वो मंसूबे होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ऐसे में लोगों के साथ फिजिकली ना लड़िए, बल्कि अपने कमरों में जाकर शिफात करना सीखिए, घुटनों के बल होइए और दुआ कीजिए। कलाम बता रहा है कि जब तक तो मूसा उनके लिए दुआ करता रहा, उसके हाथ आसमान की तरफ रहे, यानी कि जब तक कि वो उस झंडे को बुलंद किए हुए था, तब तक तो वो अमालिकियों को शिकस्त देते जाते थे। मगर जैसे ही उसके हाथ यानी खुदा की वो लाठी जो झंडे का काम कर रही है नीचे को आती थी, तो दूसरी साइड को फतह होने लगती थी। ये झंडा जंग में जीत और हार की निशानदेही किया करता था।
कोई भी कौमें जब लड़ा करती थी तो हर एक का एक झंडा हुआ करता था, और जब तक के झंडा ऊपर रहता था पता चलता रहता था कौन सी साइड जीत रही है। जैसे ही झंडा नीचे होता था तो पता चलता था कि अब दूसरी साइड वीक हो रही है, और मूसा का हाथ नीचे आते ही अमालेकी जो हैं वो गालिब आने लगते थे। इससे हम सीखते क्या हैं? जिंदगी की जंगों में जब हमारे घुटने दुआ में मजबूत रहते हैं, आप अपनी जिंदगी के हर महाज पर फतह पाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर रिलाय करने लगेंगे, मेरी अकल, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी अपॉर्चुनिटीज, मेरी सारी प्लानिंग, आप हारने लगेंगे। इसलिए कि दोस्तों, मेरे अजीजों, एक ईमानदार की जंग घुटनों पर जीती जाती है। मुझे दानिएल की मिसाल इस जगह पर पसंद है। हम समझते हैं, और हमेशा बच्चों को भी हम दानिएल जब शेरों की मांद में गिराया गया इसकी बात करते हैं। हमें बड़ा पसंद है कि खुदा ने शेरों की मांद में शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मैं ये समझती हूँ, इससे पहले कि शेरों की गार में फतह मिले, दानिएल दिन में 3 दफ़ा घुटनों पर जाया करता था। हम फतह को देखते हैं, हम प्रोसीजर को नहीं देखते हैं, हम करैक्टर को नहीं देखते हैं। हम चाहते हैं खुदा हमारे लिए शेरों के मुंह बंद कर दे, मगर क्या हम दानिएल की तरह पहले दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा अपने घुटनों पर जाते हैं? शायद नहीं। ये सीखने की बात है। रोज सुबह जब आप दुनिया को फेस करने के लिए बाहर निकलें, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, हम कई फ्रंट्स पर लड़ रहे होते हैं। कई दफ़ा फैमिली सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, कई दफ़ा प्रोफेशनल सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, कई दफ़ा हम किसी और मसले से दो चार होते हैं, और इतने दो चार होते हैं कि हम हर वक्त अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं और एक की प्रिंसिपल को भूल जाते हैं। इंटरसेशन कम्स बिफोर प्लानिंग। इससे पहले कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोलकर हर रोज़ ज़िंदगी की जंग पर निकलें, क्या आपने अपने आप को खुदा के हथियारों से लैस किया है? क्या आपने अपने सारे दिन के प्लान्स को खुदावंद के स्पुर्द किया है? क्या आपने यहोवा निस्सी को अपने आगे रखा है, या आप सिर्फ अपनी प्लानिंग का झंडा उठाकर रोज घर से बाहर चले जाते हैं? मुबारक है वो ईमानदार जो सुबह सवेरे उठकर घुटनों पर जाता, दुआ करता, सरेंडर करता है और कहता है, खुदावन मैं तेरे झंडे को बुलंद करता हूँ, और जब मैं अपने घर से बाहर निकलूँ तो मेरी बातचीत से, मेरी डीलिंग से इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। मेरे दफ्तर में तेरा झंडा ऊपर रहे, मेरे घर में तेरा झंडा ऊपर रहे, मेरे बच्चों के स्कूल में यहोवा निस्सी दिखाई दे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जिंदगी की जंग में हार जाएं, क्योंकि यहोवा निस्सी फतह देने पर कादिर है। हालेलुया। दूसरी बात जो इस पैसेज से हम सीखते हैं, मोसेस गॉट टायर्ड। मूसा एक वक्त आया कि थक गया, और क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है, यहोवा निस्सी का लफ्ज निस्सी का एक मतलब ये है किसी एक निशान के नीचे मुत्तहिद रहना। तो कलाम बता रहा है कि उस वक्त वो पहाड़ पर अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लोग और मौजूद थे। मोसेस वॉज अ टीम प्लेयर।
वो 2 लोग कौन थे जो उसके साथ मौजूद थे? एक उसका भाई हारून, दूसरा शख्स उसका नाम है हूर। और खरूज 31वें बाब में हमें पता चलता है कि ये बजलीएल का पोता था और ये हुनरमंद शख्स था जो खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए जिम्मेदार भी ठहरा। ये 2 लोग मूसा के साथ पहाड़ पर मौजूद थे और एक वक्त आया कि मूसा के हाथ भर गए, वो उन्हें और उठा नहीं सकता था और उसके हाथ नीचे को आने लगे। इन 2 लोगों ने देखा कि लीडर थक रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं नहीं सर हालेलुया दा नारा मारो, तुसी होर कर सकते हो। नो, they were realistic. He is human. कई दफ़ा जो लोग हमें लीड कर रहे होते हैं उनके बारे में एक बात जो हम भूल जाते हैं वो ये कि वो भी इंसान हैं और जिस्मानी तौर पर वो भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। हमेशा लीडर से लेते रहना ही अच्छा नहीं, कई दफ़ा टीम को लीडर के साथ खड़ा होना पड़ता है और उसको बैठने के लिए पत्थर देना पड़ता है। उन्होंने पत्थर दिया और कहा सर प्लीज सिट। अब आप हाथ नहीं उठा सकते। एक तरफ से हारून ने कहा मैं उठाऊंगा, दूसरी तरफ से हूर ने कहा मैं उठाऊंगा और इस इंटरसेशन के अंदर वो उसके पार्टनर्स बने। मुबारक हैं वो कलीसियाएं, मुबारक हैं वो मसीही लीडर जो 1 मैन शो पर यकीन नहीं रखते बल्कि टीम वर्क पर बिलीव करते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारी मुद्दत इस ज़मीन पर कुछ अरसे की है, हमें जाना है, हमें इसके बाद लोगों को तैयार करना है। लोग तैयार हमारे साथ रहकर मिनिस्ट्री को, प्रोफेशन को एक्सपीरियंस करने से होते हैं। अच्छा लीडर हमेशा लोगों में इन्वेस्ट करता है। अच्छा लीडर जब घुटनों पर जाता है तो साथ वालों को साथ घुटनों पर लेकर जाता है। अगर वो उनको पहाड़ पर ना लेकर जाता तो शायद बनी इसराइल हार सकते थे, क्योंकि अब वो अपनी हिम्मत से हाथ ऊपर नहीं रख सकता था। सो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। मेरे अजीजों, यहोवा निसी के अंदर ये बात, ये मुकाशफा, ये रियलिटी हम सीखते हैं। कलीसिया इज अबाउट टीम वर्क। ये मिलकर मुत्तहिद होकर काम करने का नाम है। अनफॉर्चुनेटली नॉट जस्ट इन पाकिस्तानी चर्च, सिर्फ पाकिस्तानी चर्च की बात नहीं है, यूनिवर्सली वी आर सो डिवाइडेड। इतने ज़्यादा डिवीजन है चर्च के अंदर, हम कई दफ़ा यहोवा निसी उस झंडे को भूल जाते हैं और अपनी झंडियाँ लेकर घूमते रहते हैं। हमारे लिए अपनी ईगो की झंडी, अपने काम की झंडी उस झंडे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई देती है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट द बाइबल टीचेस। कलाम इसकी तालीम नहीं देता। कलाम यहोवा निसी यानी उस झंडे के नीचे मुत्तहिद होकर काम करने को सिखाता है। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ जीसस। यीशु मसीह की मिसाल ले लें। क्या यीशु मसीह को टीम की जरूरत थी? हाँ जी, यस। आप अंदर से नो ही कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदाए मुजस्सम है। शायद उसकी पावर को देखते हुए, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए यीशु मसीह को किसी इंसान के साथ की जरूरत नहीं थी। तो भी जीसस प्रैक्टिकली शोड कि टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। बतौर कामिल इंसान ही नीडेड पीपल। उसकी मिनिस्ट्री इतनी ज़्यादा थी, उसको लोगों की ज़रूरत थी। यीशु तालीम देता कि जाकर बाज़ार से खाना लेकर आता। यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होने लगा तो उसने खुद जाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का अरेंज नहीं किया। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ और जाकर लादू के उस बच्चे को ले आओ। इसी तरह से
کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، اس میں ہمارے ڈیفرنٹ رولز ہیں. جیسے ہارون اور ہور کا رول اس وقت موسیٰ کے بازوؤں کو سہارا دینا تھا، اسی طرح سے ہمیں اپنے رولز پہچاننے اور اپنے لیڈرز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ان کی خدمت ہے، یعنی موسیٰ کی انٹرسیشن کی خدمت ہے، وہ اس کو کر سکتا اور خدا اس کے جواب میں اسرائیل کو فتح بخشتا. ہم دیکھتے ہیں کہانی آگے بڑھتی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے موسیٰ سے بات کی، اور خدا نے موسیٰ کو کیا کہا؟ خدا نے اس سے کہا کہ اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیق کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں گا. یہوہ نسی کیپس ریکارڈ. خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں کیے گئے کاموں کا ریکارڈ رکھتا ہے. اور اس سے تیسری بات آج صبح ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب یہوہ نسی آپ کو فتح دے، جب وہ آپ کو آپ کے دشمنوں پر غالب کرے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے سے پیچھے آنے والی لیڈرشپ کے لیے یادگار محفوظ کیجئے. ہم کئی دفعہ کیا نہیں ہوا، اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ کرنے کے عادی ہیں. ہماری زندگیوں میں کوئی 60-70 سال تک جب ہم زندہ رہتے ہیں، خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم انہیں تحریر کر سکیں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی زندگی میں ہونے والی خدا کی وفاداری کو پڑھ کر تقویت پائیں، اور نسل در نسل خداوند کا مکاشفہ، اس کی وفاداری کا بیان آپ کے خاندانوں میں چلتا رہے. یہی کام خدا موسیٰ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ ایک دن یشوع نے ان کو لے کر ملک موعودہ میں داخل ہونا ہے. یہی فتوحات اس کو زور دیں گی، حوصلہ دیں گی آگے بڑھنے کا، کہ جس طرح سے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا، ویسے ہی یشوع میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا. یہ باتیں اسے کیسے پتہ چلتی تھیں؟ یہ باتیں اسے اس یادگاری کو پڑھنے سے پتہ چلتی تھیں کہ خدا نے عمالیکیوں کو ہرایا، خدا یرو کی دیواروں کو بھی گرا دے گا. خدا اگر میرے ماں باپ کی زندگی میں یہ کر سکتا ہے، تو خدا میری زندگی میں اس سے بڑے کام کرے گا، اس لیے کہ خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں خدا ہے. سو یادگاری کیا کیجئے. اور کلام بتاتا ہے خدا نے عمالیکیوں کو شکست دی اور بنی اسرائیل فتح یاب ہو گئے. اور اس شکر گزاری کے لیے موسیٰ نے قربان گاہ بنائی. موسیٰ نے اپنا چنڈا نہیں لا دیتا، دیکھیں میں کتنے گھنٹے دعا کر کے اترا ہوں اس لیے جیتے ہیں. یشوع نے یہ نہیں کہا میں کب سے تلوار لے کر لڑ رہا تھا، ہم اس لیے جیتے ہیں، بلکہ موسیٰ کا قربان گاہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جنگ جو ہم جیتے ہیں، اس میں نہ یشوع کا کمال ہے، نہ ہمارے ہتھیاروں کا کمال ہے، نہ کسی اور بات کو جلال ہے، مگر ایک ہی ہے جس کو خدا نے استعمال کیا ہے، اور وہ خداوند خود ہے جو یشوع کے ذریعے اور موسیٰ کے ذریعے کام کر رہا ہے. یہ وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، اور اس نے رفادیم میں انہیں غلبہ بخشا، اور وہ کہتے ہیں ہم خدا کا جھنڈا اوپر کریں گے. وہ یہوہ نسی ہے جو ہمارے دشمنوں پر غالب آیا ہے، اور یہی یادگار ہے جو نسل در نسل پھر اسرائیل میں قائم رہی.
हमारे लिए सीखने की बात क्या है? जब खुदावंद आपको गलबा दे तो जलाल उसको दीजिए। डू नॉट टेक द क्रेडिट, क्योंकि आप क्रेडिट के लायक नहीं हैं, मैं क्रेडिट के लायक नहीं हूँ। खुदा अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है तो इसमें मेरी कोई लियाकत नहीं है, ये उसका फजल है जो दुनिया के हकीरों और नकम्मों को चुन लेता है और उनको इस्तेमाल करता है। जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी के रफ़ादीम में आपको गलबा बख्शे, आपके लिए गवाहियाँ कायम करे, तो आप भी कलीसिया के सामने, अपने ख़ानदानों के सामने खड़े होकर शुक्रगुजारी की कुर्बानगाह बनाएं और उसके झंडे को ऊपर करें, क्योंकि इज्जत और जलाल और बुजुर्गी और हशमत के लायक सिर्फ यहोवा निसी ही है। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, जितना बड़ा ये झंडा है वैसी आपकी तालियां नहीं हैं। He is the flag that we carry. Hallelujah. Hallelujah church. अपनी जिंदगी में इस झंडे को इज्जत दीजिए। अपनी जिंदगी में इस झंडे के नीचे मुत्तहिद रहिए। अपनी जिंदगी में इस झंडे के वसीले से आप डटे रहेंगे और फतह पाएंगे। और हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नासरी की, जिसने प्रैक्टिकली हमें एक निशान दे दिया है। हमारा झंडा आज उसका निशान उसकी सलीब है, जिस पर उसने हमारी खातिर जान दी है और वो मर गया और दफन हुआ और जी उठा और अब बाप की दाहिनी तरफ बैठकर हमारे लिए शिफात कर रहा है। और शुक्रगुजारी हो इस शिफात करने वाले की कि इसके हाथ नहीं थकते, इसके हाथ कभी नीचे नहीं आते, बल्कि वो बिना रुके हमारी शिफात करता है। और उसने अपना रूहुल कुद्स हमें बख्शा है, जो ज़िंदगी के रफ़ादीम में हमें डटे रहने का हौसला देता है। और उसने वादा किया है, मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बाप दादा ने इसी सलीब के झंडे को उठाए रखा है। मैं पोलीकार्प की मिसाल के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। What a wonderful example! ये शख्स उन तमाम लोगों के साथ शामिल था जो एज़ार सानी से गुजरे। इस शख्स ने ज़िंदगी के आखिर तक इस झंडे को नीचे आने ना दिया। और जब इससे कहा गया कि तू यीशु मसीह का इनकार कर दे, तो उसने कहा, जिसने 80 साल मुझसे वफा की है और कभी अपना मुंह मेरी तरफ से दूसरी तरफ नहीं मोड़ा, अब जिंदगी के आखिर पर मैं उसका इनकार कैसे कर दूं? मेरे लिए ये बेहतर है और एजाज़ की बात है कि मैं मसीह के लिए मर जाऊं। मुबारक हैं वो लोग जो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस झंडे को नीचे आने नहीं देते, बल्कि उनकी ज़िंदगी भी गवाही, उनकी मौत भी गवाही। और जब वो आसमान पर जाते हैं तो यीशु मसीह ऐसे लोगों का उठकर इस्तकबाल करता है और उनको वो ताज देता है जो कभी मुरझाने का नहीं। और हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जिएं कि इस रफ़ादीम में जीत सकें और ये झंडा हमारे आगे आगे रहे, ताकि जब हम उस तख्त के सामने हाजिर हों और हम कहें, खुदावन देख तेरा बंदा, तेरी बंदी हाजिर है, और वो कहे, शाबाश, तूने अपनी ज़िंदगी से इस झंडे को, इस सलीब के निशान को जलाल दिया है। आ अपनी शाबाशी पा, आ अपना ताज पा, और उन बहन भाइयों के साथ तेरा शुमार होगा जो बहुत से दुख उठाकर अब तख्त के सामने मौजूद हैं और कलाम
मुकाशफा की किताब में कहता है कि एक है जो सफ़ेद घोड़े पर आएगा, और उसके बारे में वहाँ लिखा है वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। वो इस झंडे को उठाए हुए है और दुनिया उस पर कभी गालिब नहीं आ सकती। वो ही दुनिया पर गालिब है, और तख्त लगेगा और अदालतें होंगी, और ये झंडा हमेशा ऊपर रहेगा। दुनिया के बादशाह मर जाएंगे मगर हमारा बादशाह अब्दुल अबाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। ये यहोवा निस्सी है। दिस इज यहोवा निस्सी। सो मैं आज सुबह आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप जिंदगी का क्या बैटल लड़ रहे हैं। आज आपका रफीदीम क्या है? प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फैमिली है, कहाँ पर जंग हो रही है? मेरे अजीज़ों, खौफ ना कीजिए, बल्कि घुटनों के बल हो जाइए। इससे पहले कि हमें दुनिया में फ़तह मिले, खुदावंद घुटनों पर हमें फ़तह देता है, और वो फ़तह कभी भी रिवर्स नहीं होती बल्कि हमेशा तक कायम रहती है।